تکن امداد کن از بندگان آزاد۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمانے انشاءاللہ، اس کے بعد مسائل ذکر کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ داغی جائیں گی۔ جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ اب وہ اپنی راہ دیکھے، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ کے بارے میں فرمایا جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور وہ اونٹ سب کے سب نہایت فربا ہو کر آئیں گے، پاؤں سے اسے روندیں گے، منہ سے کاٹیں گے۔ جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی پہلی لوٹے گی۔ اور گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کے سب آئیں گے، نہ ان میں مڑے ہوئے سینگ کے کوئی ہوگی، نہ بے سینگ کی، نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے روندیں گی۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اس حدیث پاک میں اونٹ کے بارے میں، گائے بکریوں کے بارے میں، سونے چاندی کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے کل قیامت کے دن کتنا بھیانک عذاب میں وہ مسلط کیا جائے گا، اس حدیث پاک سے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، ہم چل رہے تھے زکوٰۃ کے شرائط کے بیان میں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جس میں سے ایک تھا مسلمان ہونا، دوسرا تھا بالغ ہونا، تیسرا تھا عاقل ہونا، چوتھا آزاد ہونا، پانچواں مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہونا، چھٹا پورے طور پر اس کا مالک ہونا۔ ان سب کے متعلق مسئلہ میں نے تھوڑا بہت کل بیان کر دیا تھا۔ آج 7ویں شرط کا بیان ہے کہ جو نصاب ہے، نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی قرض سے۔ دین کا مطلب قرض سے، یعنی ایسا نہیں کسی آدمی کے پاس نصاب تو ہو گیا، 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے یا ان کی قیمت ہے یا مال تجارت وغیرہ ہے جو ان سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں۔ نصاب تو ہے ان کے پاس، لیکن قرض ان کے اوپر اتنا ہے کہ اگر قرض نکالا جائے تو پھر وہ نصاب باقی نہیں رہتا، وہ نصاب باقی نہیں رہتا۔ تو اس میں ایسا ہے کہ سب سے پہلے نصاب کو دیکھیں گے اور پھر ہم قرض کو دیکھیں گے۔ جیسے اگزامپل کہ 48,000 روپے پر زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے پاس 50,000 روپے ہے اور قرض 10,000 روپے ہے تو 50,000 سے 10,000 کٹ جائے گا تو کتنا بچے گا؟ 40,000، اور نصاب کتنا ہے؟ 48,500 روپے۔ تو زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ نصاب جب ہوگا ہم اس کو دین سے مجرا کریں گے، یعنی جتنا دین ہے اتنا، جو قرض ہے ہمارے اوپر اتنا۔ قرض نہیں ہے تو پھر تو زکوٰۃ تو ہونی ہی ہے۔ قرض ہے جتنا اتنا نکال لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگزامپل 50,000 روپے آپ کے پاس ہے، 48,500 پر زکوٰۃ فرض ہے نا، اس میں سے 500 روپے آپ کے اوپر قرض ہے، تو 500 نکالنے کے بعد تو ایسا بچ ہی جائے گا، ہے نا، بچ ہی جائے گا نا۔ 49,000 ابھی باقی تو 1,500 روپے، تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو جو نصاب ہے اس کا دین سے فارغ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ دین خواہ بندے کا قرض ہو، یعنی کسی بندے سے آپ نے لیا ہے مال و دولت وغیرہ، پھر اس کو دینا ہو، یا کسی کا نقصان کر دیا تو اب اس کی بھرپائی کرنا پڑے گا، تو پھر اس کے بعد نہیں رہے گا، ہے نا، یہ ہو گیا۔ یا پھر اللہ رب العزت کا دین ہو، چاہے بندے کی طرف سے ہو چاہے رب کی طرف سے ہو۔ بندے کی طرف سے تو آپ نے سمجھ لیا، کسی کا پیسہ ہم نے قرض لیا تھا، اور اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ جیسے کہ 1 سال کی زکوٰۃ ہم پر فرض ہوئی تھی، ہم نے دیا نہیں، دوسرے سال کی زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، ہم نے دیا نہیں، اور جب تیسرے سال ہم نے نصاب کو دیکھا تو
पता ये चला कि 48,500 रुपए तकरीबन हमारे पास हैं, तो अब ज़कात को निकालना है 2.5%। तो फिर अब ये देखेंगे 2 साल जो आपने नहीं निकाला, उन सालों की ज़कात अदा करनी कि नहीं करनी? करनी है। तो जब एक मर्तबा पिछले साल की ज़कात अदा कर लेंगे, यानी पहले वाले साल की, है ना, दूसरा साल और ये जो आइंदा साल अभी जोड़ रहा है, तो सबसे पहले वाले साल का निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि निसाब बाकी रह गया या कम हो गया, निसाब बाकी रहेगा या कम हो गया। तो देखेंगे 48,500 रुपए में से हमने पहले साल की ज़कात निकाल दी, तो देखा कि इतना निकल गया, अब निसाब बच ही नहीं रहा है, तो अब फिर ये ज़कात माफ है। ठीक है, इनको बाद में अदा किया जाएगा, पहले वाले को अदा किया जाएगा, यानी पहले कर्ज को चुकाया जाएगा। तो ये दैन का मतलब हुआ कि जो निसाब हमारे पास है वो निसाब दैन से क्या हो? फारिग हो, चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दैन हो या चाहे बंदों की तरफ से दैन हो। अब एक मसला और है इसी तरह दैन वाला, मदीन उसको बोलते हैं जिस पर कर्ज हो, जिस पर कर्ज हो, जो यानी जिसने किसी से कर्ज लिया हुआ हो। अगर आदमी खुद मदीन नहीं है, यानी खुद उसने कर्जा लिया नहीं है अपने लिए कर्जा नहीं लिया, लेकिन उसने 1-2 बच्चे या कुछ आदमियों को अपनी कफालत में रखा हुआ है, कुछ आदमियों को, कुछ बच्चों को, जैसे होते हैं ना कुछ यतीम बच्चे, है ना, तो अपनी ले लेते हैं, अपनी कफालत में ले लेते हैं। जैसे हमारे एक महमूद भाई है शायद, उनके पास है, उनके कफालत में 1-2 बच्चे। तो ऐसा है कि उन पर दैन तो नहीं है, लेकिन बच्चों पर दैन है, या फिर जो आदमी बड़ा है उन पर दैन है। तो अब क्या किया जाएगा? क्योंकि इसकी कफालत में है, इसकी जिम्मेदारी में है। और कर्ज का मामला ऐसा है ना कि अगर किसी से आप कर्ज ले सकते हैं, चाहे वो मियादी हो या गैर मियादी हो। मियादी का मतलब टाइम, मतलब इतने टाइम में दे देंगे, या बगैर टाइम के मुअज्जल, जैसे महर रखते हैं, मेरे मुअज्जल लग देते हैं, दे दूंगा कभी जब पड़ेगा तो उसे, है ना। तो चाहे मियादी दैन हो या गैर मियादी हो, टाइम वाला हो या गैर टाइम वाला, उसमें क्या होता है, जिससे आप कर्ज लिए रहते हैं, कर्ज देने वाला कभी भी मांग सकता आपसे, उसमें टाइम का एतबार नहीं है। उसको जब जरूरत पड़ेगी, उसका जब मन चाहेगा तब वो मांगेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो भी कंप्लेंट कर सकता है, फिर आपको कैद कराया जा सकता है। कर्ज का यह मसला है कि कभी भी मांगेगा वो, है ना, उसको मना नहीं, तुमने तो इतना टाइम दिया था। हाँ, इंसानियत और चीज है, लेकिन शरीयत का मसला और है। जब उसने दिया हुआ है तो फिर वो कभी भी मांगेगा। हाँ, अगर तुम पर रहम खा रहा है, अपना दोस्त है, चलो भाई ठीक है रख लो, अभी नहीं है तुम्हारे पास, वो अलग बात है, लेकिन वो जब चाहे तब तलब कर सकता है। तो अब ये जो मदयून था, जिसके ऊपर जिसकी कफालत में कुछ आदमी थे, तो उन आदमियों पर कर्ज था, और वो उन आदमियों के पास उतना सामान तो था नहीं। अगर वो सामान रहता तो फिर ये खुद दूसरे की कफालत में क्यों जाते? जब उन्हीं के पास सामान मौजूद है तो दूसरे की कफालत में क्यों जाते? इसका मतलब कि उनके पास सामान नहीं है, और ये कि उन पर कर्जा चढ़ा हुआ है, और जब चाहे वो उन आदमियों से मांग सकता है, कर्ज देने वाला मांग सकता है। तो अब ये जो कफालत कर रहा है, जिसके ऊपर अगरचे कर्ज नहीं है, लेकिन कफालत में जो आदमी है उनका कर्ज है, तो अब ये किससे मांगेगा कर्जा? कफील से मांगेगा। किससे मांगेगा? जो उसकी हिफाजत कर रहा है, जो उसकी निगरानी में, उससे मांगेगा। और अगर नहीं देगा तो बच्चों को कैद कर लेगा वो, है ना। तो इस पर भी फिर देखेंगे कि कफालत में से अगर इतना पैसा निकल गया कि निसाब बाकी नहीं रहा तो फिर ज़कात नहीं। निसाब बाकी नहीं रहा तो ज़कात, मान लीजिए कि 1,000 रुपया था और 48,500 रुपए, उसमें से अगर दे देंगे तो कितना बच जाएगा? 47,500। फिर खत्म हो गया, तो फिर का निसाब बचा, तो अब ज़कात फर्ज नहीं है। आप दे सकते हैं, फर्ज नहीं है। फर्ज अलग होता है, देना अलग होता है। ये एक मसला हुआ। इसी तरह जो कर्ज माने होता है, जो कर्ज ज़कात को देने से रोकता है, उसको भी समझ लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ी कर दें। दैन उस वक्त मानिए ज़कात है जब ज़कात वाजिब होने से पहले का हो। मिसाल के तौर पर आम रमजान से रमजान निकाल रहे हो ज़कात, ठीक है, और रमजान से पहले शाबान में, रबीउल अव्वल में, माह मुहर्रम में, इनके दरमियान आप
किसी का कर्जदार हो गए, तब ये ज़कात को रमजान में रोकेगा। वरना अगर एक साल पूरा हो गया, रमजान आ गया, निसाब पूरा हो गया, टाइम ओवर हो गया, साल गुजर गया, फिर अगर अब दैन चढ़ रहा है आपके ऊपर, तो ये दैन मानिए ज़कात नहीं होगा, ये दैन मानिए ज़कात नहीं होगा। साल गुजरने के दरमियान अगर दैन चढ़ा तो दैन को निसाब से मुजरा किया जाएगा, और साल पूरा होने के बाद दैन चढ़ा तो दैन को मुजरा नहीं किया जाएगा, फिर ज़कात देनी पड़ेगी अगरचे दैन हो तुम्हारे पास, अगरचे दैन। इस मसले को समझ लें अच्छी तरह। इसी तरह जो दैन ज़कात को रोकता है, यानी ज़कात देने को मना करता है कि निसाब नहीं रहेगा अब तुमको निकालने के बाद, जिस दैन का मुतालबा बंदों की तरफ से ना हो, उस जगह इस जगह उसका एतबार नहीं। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आपने कोई चीज मांगी, मिसाल के तौर पर आपने नजर माना अल्लाह ताला के लिए, है ना, ये काम हो जाएगा तो इतने रोजे रखूंगा, ये काम हो जाएगा तो हज करने चला जाऊंगा, सदका फित्र अदा कर दूंगा, ये सब आपने नजर मानी, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फर्ज है, बंदों की तरफ से नहीं। बरसों की तरफ से तो आपने सोना चांदी ले लिया, पैसे ले लिए, ये वाला हो गया। तो जो दैन बंदों की तरफ से हो वो मानिए ज़कात होगा, और जो दैन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो वो दैन मानिए ज़कात नहीं होगा, वो दैन मानिए ज़कात नहीं होगा। एग्जाम्पल, आपने हज कर लिया, बोला हज कर लिया तो 48,500 से कम हो गए, 30,000 बचा, अब ये मना नहीं करेगा, अब ज़कात देना पड़ेगा आपको, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो, नज़र के, कफ्फारे के, सदका फित्र के, हज के, है ना, ये इनको क्या करना होगा, इनके अदा करने के बाद अगर निसाब बाकी नहीं रहता तब भी ज़कात अदा करनी है। हाँ, अगर बंदों की तरफ से कुछ था तो फिर उनको देने के बाद अगर निसाब बाकी नहीं रहा तो फिर नहीं अदा करना पड़ेगा। ये हुआ। इसी तरह 8वीं शर्त है निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, यानी जो जिंदगी में जरूरत के सामान हमको मैसर हैं, जैसे घर है रहने के लिए, जाड़े के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े हैं, गाड़ी वगैरह है आने जाने के लिए, है ना, तिजारत के लिए नहीं, आने जाने के लिए, यानी जो आपको जरूरी है वो। तो जो सामान जरूरत के हैं उनको निकालने के बाद या वो सामान लेने के बाद अगर निसाब रहता है तो ज़कात है, और निसाब नहीं रहता है तो ज़कात नहीं है। अब ये मत समझ लेना एक घर है दूसरा घर ले लूं, वो भी तो उसी नहीं, वो तिजारत के लिए नहीं लिया हूं, किराया देने के लिए भी नहीं लिया हूं, ऐसे ही लिया हूं, क्योंकि लिया क्यों, जरूरत है तुमको, नहीं है जरूरत है नहीं है, जब नहीं है तो फिर ज़कात है। जिस चीज की जरूरत होगी रहने के लिए मकान, उस मकान को जरूरी माना जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी रफ़ीक़ान मिल्लत, ये हाजत असलिया का फारिग होना माल से। इसी तरह जो बच्चे पढ़ते हैं दीनी इल्म, स्कूल का इल्म नहीं, दीनी इल्म के लिए, अहले इल्म के लिए अगर उन बच्चों के पास किताब नहीं है तो ये किताब भी हाजत असलिया में शुमार की जाती है ना। हाफिज कुरान के लिए कुरान मजीद हाजत असलिया नहीं, हाफिज कुरान के लिए जिसको कुरानी जुबानी याद है, क्योंकि उसको याद है, इसको याद है, इसलिए उसके लिए कुरान हाजत असलिया नहीं। इसका क्या मतलब, अगर 48,500 पर ज़कात फर्ज है, आपने कुरान लेने गया, कुरान लेने के बाद देखा कि 500 रुपया तो मुसहफ शरीफ में चला गया, तो 500 रुपया कम हो गया ना, तो ज़कात होगी नहीं होगी, है ना। तो यह हाफिज कुरान के लिए वो कुरान शरीफ क्या है, जरूरत नहीं है, वो कुरान शरीफ क्या है, जरूरत नहीं। हाँ, जो गैर हाफिज है, जो हाफिज नहीं है उनके लिए ये है, उनके लिए हाजत असलिया है। इसी तरह जो आलिम वगैरह होते हैं तो उनके पास जितनी किताबें जरूरत के हैं, चाहे दीन को पहचानने के लिए या कुफार का रद्द करने के लिए, जो भी किताबें जरूरत पड़ती है वो सारी की सारी किताबें उनकी जरूरत की मानी जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी रफ़ीक़ान मिल्लत, तो ये हुआ कि माल का निसाब का हाजत असलिया से फारिग होना, यानी कोई ऐसा काम ना हो जिसकी तरफ जिंदगी उसके बगैर ना चल सके, उसके बगैर ना चल सके। आज पिछले जमाने में साइकिल और मोटरसाइकिल था, तो आज 4 चक्का है ना, ये भी जरूरत ही है। कोई तो साइकिल चला के नहीं जाएगा अपनी ऑफिस, ऑफिसर तो अक्सर नहीं जाएंगे,
हाँ? वो तो खुद ड्राइवर रखते, साइकिल चला के क्या जाएंगे। तो गया कि ये भी जरूरत है, ठीक है। हाँ, तो ये गाड़ी भी जरूरत के सामान हो जाएंगे। जो जिस माल पर ज़कात वाजिब होती है वो माल नामी होना चाहिए। नामी का मतलब बढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो तिजारत का सामान हो चाहे सोना चांदी। सोना चांदी तो ये पैदाइशी बढ़ने का सामान है कि खरीदो बेचो, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, है ना। ये पैदाइशी इसीलिए वजह किया गया है कि इनके लिए क्या है, नामी है, यानी ये बढ़ते रहते हैं। और तिजारत के जो माल होते हैं उन पर ज़कात कब फर्ज होगी, जब हम तिजारत करेंगे तब। जब हम जो भी सामान वगैरह है जो हकीकतन नहीं बढ़ते, हुक्मन बढ़ते हैं, जैसे कोई आदमी अपनी दुकान में सामान लेके आ गया, अब उसकी खरीदो फरोख्त नहीं करेगा तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, खरीदो फरोख्त करना पड़ेगा तो बढ़ेगा। तो जो भी सामान लाए हैं वो तिजारत के लिए है, तो उस सामान पर क्या है, ज़कात है, उस सामान पर ज़कात। तो गोया के आप ऐसे समझ लें कि 3 चीजों पर ज़कात है। नंबर 1 सोना चांदी, जब मिकदार को पहुंच जाएगा तो सब जहन में रहे, सोना चांदी। नंबर 2 माले तिजारत, माले तिजारत यानी जो सामान आपके दुकान में रखा हुआ है, आपके उनकी कीमत लगाएंगे, कीमत लगा करके फिर देखेंगे कितनी मिकदार पहुंच रही है, समझ रहे हैं, वो ये माले थे। और तीसरा साइमा यानी जानवर, है ना, जानवरों पर। तो ये 3 चीजों पर क्या है, ज़कात फर्ज है। रहा जैसे जवाहिर मोती हैं तो उन पर ज़कात फर्ज नहीं है, इसलिए बोले ज़कात में एक शर्त क्या है, माल का नामी होना, यानी बढ़ना, चाहे हकीकतन बढ़े चाहे हुक्मन बढ़े। हकीकतन सोना चांदी बढ़ते हैं और तिजारत का माल ये हुक्मन बढ़ते हैं, तिजारत करोगे तो बढ़ जाएगा। तो ये 9वीं शर्त है, माल का नामी होना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।